हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। आज अब थोड़ा श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से हरिनाम के बारे में 2 मिनट सुनते हैं। 2 मिनट हरिनाम की महिमा मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा आप लोग को भी सुनाता हूँ। उसके बाद हम अपना भागवतम चालू करेंगे। मैं शेयर करता हूँ जो मैंने सुना है, तो ध्यान से सुनेगा। ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं, आपको दिखाई भी पड़ रहा है लिखा हुआ, और आप सुन भी पा रहे हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So anyway, Krishna has prescribed this devotional service. Very nice. You can very happily perform. Susukam kartum abhyam savanadike abhashamane tasmin sad vishaye purushottama aham avirbhavami. It is said that Krishna appears when we chant this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This sound is non-different from Krishna. Therefore, when you vibrate this sound, this means this sound Krishna and the original Krishna the same, identical. So you are not only dancing, but Krishna is also dancing with you. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब आप हरे कृष्ण का जप करते हैं तो कृष्ण का जो आवाज जो आप निकाल रहे हैं, आपके मुंह से जो आवाज निकल रहा है कृष्ण का, वो और कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण जो खुद कृष्ण, और आवाज में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण खुद है वही आपका आवाज में आ रहा है, वो भी कृष्ण वही है। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप हरे कृष्ण बोल के नाच रहे तो कृष्ण भी नाच रहे साथ में, कृष्ण भी आपकी जीभ के ऊपर नाच रहे। सब प्रभुपाद बोल रहे हैं, आगे सुनिए। If you say that why do I not see him? Yes, seeing is not. Why do you stress on seeing? Yeah, why not hearing? Seeing, hearing, tasting, touching, these are our instruments for experience. That's all, knowledge. प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। हम क्यों कृष्ण को नहीं देख पा रहे नाचते हुए? तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप देखने के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे? आंखों से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, जीभ से स्वाद लिया जाता है, नाक से सुना जाता है। सब इंद्रियों का फंक्शन अलग अलग है। तो देखने में और सुनने में क्या अंतर है? अगर कोई चीज को हम देख नहीं पा रहे लेकिन सुन पा रहे, तो उसमें अंतर क्या है? एक ही बात तो है, नहीं देख पा रहे लेकिन सुन तो पा रहे हैं। Why you are so much, important about seeing? A devotee does not wish to see Krishna. He simply is satisfied simply by hearing of Krishna. As seeing is also experience, so hearing also experience. That I have explained many times. Seeing and hearing also something you cannot see, you can hear only. Just like when the air, wind passes very violently, you cannot see, but you can hear. But you get the experience. So, seeing is not only experience, but hearing is also experience. When you hear the sound of the wind, you say, oh, today wind is very violently blowing. You can feel, but you don't see the air. So don't stress on seeing only. There are so many senses. प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप
देख नहीं पाते लेकिन सुन पाते। जैसे हवा चलती है, तूफान आता है, बहुत जोर से तेजी से हवा चल रही है, तो आप कान में सुन पा रहे हैं हवा को, लेकिन आप अनुभव करते कि हवा चल रही है, देख नहीं पा रहे। तो ऐसे ही भगवान को हम सुन पा रहे हैं। जब हम साउंड का आवाज कर रहे हैं तो भगवान हमें सुनाई दे रहे हैं। और एक बात बोल रहा हूँ, Yeah, we can perceive the presence of God or Krishna by hearing. By hearing. And he is there present. He is there present. He says, Krishna says that Nahang Tishtami Vaikunthe Yoginam Hridayecha Jatra Gayanti Madbhakta Tatra Tishtami Narada. He says that I am not actually in my abode, Krishna Loka, neither I am in the heart of the yogis who are meditating, but I am present there where my pure devotees are singing. Singing. Yes, Krishna says that. So you can feel the presence of Krishna as we make progress in this line. हरे कृष्ण। यही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम कृष्ण को सुन के, कान के द्वारा कृष्ण को देख सकते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम कृष्ण को देख पाएंगे आवाज के द्वारा। आवाज में जो आवाज हम कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं वो कृष्ण ही है, ये हमको अभी अनुभव नहीं हो रहा। इसी प्रकार हमको लगा कि हम लोग प्रभुपाद जी का आवाज सुन रहे हैं, इसका मतलब प्रभुपाद जी प्रेजेंट है कि नहीं। हम लोग जब प्रभुपाद का आवाज सुन रहे हैं तो आवाज में प्रभुपाद जी प्रेजेंट है हमारे साथ। खाली हम लोग का अनुभव करने का बात है। अगर आप अनुभव करेंगे कि प्रभुपाद भी जप कर रहे हैं, हम उनके सामने जप कर रहे हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। हरि बोल। अभी हम थोड़ा पाठ करते हैं। आज समय हो गया, सीधा भागवतम में चले जाते हैं। कल हमने श्लोक नंबर 8-9 किया है, आज श्लोक नंबर होगा श्लोक नंबर 8-9 हो गया, ये 10 नंबर स्क्रीन पे ला रहा हूँ श्लोक, देख पाए। किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रिं स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहिर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराह वपुषा परिरम्भणेन किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रिं स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहिर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराह वपुषा परिरम्भणेन किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रिं स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहिर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा
क्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुषा परिरम्भणेन किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रिं स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहेर्विभाषे अप्यङ्घ्रिशम्भव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुष परिरम्भणेन। जो लोग श्लोक बोलेंगे हाथ उठाइए। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। किं ते कृतं क्षितितपोवत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि अभ्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा अहो वराह वपुषा परिरम्भणेन। किं ते कृतं चित्तपोवत् केशवाङ्घ्रिं स्पर्शोत्सवोत्किलातङ्गविर्भासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुष परिरम्भणेन। किं ते कृतं क्षितितपोवत केशवाङ्घ्रि स्पर्शे सबोत्पुलकिताङ्गरुहे विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराह वपुषे परिरम्भणेन। आइए अभी हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। गोपियां आगे बढ़ती हैं। अभी तक पहले उन्होंने कृष्ण को ढूंढ रही है गोपियां, तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपियां पहले अश्वत्थ वृक्ष के पास गई, प्लक्ष के पास गई, न्यग्रोध के पास गई। उनको पूछने लगी कि कृष्ण को आपने देखा है क्या? वो लोग उत्तर नहीं दिए, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर आगे गई और आगे जो चंपक वृक्ष था, नाग केसर, पुन्नाग और ये सब वृक्ष थे जो जिसमें फूल उगते हैं, वो सब वृक्षों से पास गई। वो फूल भी वो सब वृक्ष भी कुछ आंसर नहीं दे रहे थे। फिर गोपी आगे बढ़ के तुलसी महारानी तुलसी के वन में गई और तुलसी को पूछने लगे कि आप तुलसी आपने देखा है क्या? तो वहां पर भी उत्तर नहीं आया। फिर गोपियां आगे बढ़ी और यमुना के किनारे पहुंची। वहां पर बहुत सारे वृक्ष थे। उन सब वृक्षों को पूछा कि आपने देखा है क्या? तो वहां पर भी कोई आंसर नहीं मिला। तो अभी जाके वो भूमि को पूछती है, मतलब वृक्ष को पूछना बंद हो गया। अभी भूमि को, पृथ्वी देवी को पूछ रही है। तो पृथ्वी देवी को पूछने के पहले पृथ्वी की प्रशंसा कर रही है। तो क्या बोल रही है पृथ्वी के लिए कि कृष्ण कहाँ भी रहेंगे, कहीं पर भी हो कृष्ण, लेकिन पृथ्वी पे तो जरूर रहेंगे। पृथ्वी को छोड़ के तो ये जाना नहीं है उनको। इसलिए पृथ्वी को पर डायरेक्ट अभी अप्रोच किया। हे क्षिति, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे क्षिति, हे पृथ्वी देवी, बत ते किम तपकृतम, अरे आपने ऐसा कौन सा तपस्या किया है? हे पृथ्वी देवी, हे धरणी माता, आपने कौन सा तपस्या किया है जिसकी वजह से आप केशव अंग्री, श्री कृष्ण के अंग्री मतलब पांव, श्री कृष्ण के चरण को आप निरंतर स्पर्श कर पा रही है। आपको कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त है। और तो अगर पृथ्वी पूछती है कि आप लोग को कैसा पता चला कि कृष्ण मेरे को अभी भी स्पर्श कर रहे हैं, हो सकता है कि कृष्ण थोड़ा पृथ्वी के ऊपर आकाश में उठे हो। तो बोलते नहीं, हम देख रहे हैं कि कृष्ण का स्पर्श होने की वजह से जो
जो कुछ लक्षण आप में देख रहे हैं कृष्ण के स्पर्श का, क्या लक्षण है? तो स्पर्शो उत्सव पुलकित अंग रुहेर विभासी। आपके शरीर में आप पुलकित हो रही हैं। किसी को अगर भगवान का स्पर्श होता है, भगवान का अनुभव होता है, जैसे सात्विक भाव होता है, अष्ट सात्विक, जैसे कृष्ण को थोड़ा बहुत भी किसी को अनुभव होने से तुरंत सबसे पहले पुलकित होता है और कंपायमान होता है। तो कंप और पुलक ये एकदम प्राथमिक सात्विक जो विकार होते हैं उसके प्राथमिक एकदम प्राथमिक लक्षण है, प्रथम लक्षण है। तो पुलक होना और कंप होना। तो आपके शरीर में पुलक और कंप दिख रहा है। तो कैसे कैसे तुमको पता चला पुलक और कंप? तो ये जो सुंदर सुंदर वृक्ष राजी है, लैपटॉप का चार्ज, जो वृक्ष राजी हैं, वृक्ष जो खिले हिल रहे हैं, डोल रहे हैं वृक्ष, और सुंदर सुंदर वृक्ष, लता, घास, पत्ते खिल रहे हैं, ये पृथ्वी का रोमांच है। इसको ही पृथ्वी का रोमांच माना जाता है, पुलक माना है। और वृक्ष हिल रहे हैं मतलब कंपन हो रहा है, इसलिए दिख रहा है कि तुम बहुत खुशी हो, प्रसन्न हो। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान के चरण पड़ रहे हैं। अपी, हाँ, और नहीं तो तुम इतनी खुशी क्यों हो? दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण गोपियां कल्पना करती है, अपि उरुक्रम विक्रमा। अथवा दूसरा कारण है कि जब भगवान वामन देव ने जब 3 पग भूमि मांगा था, उरुक्रम मतलब वामन देव, उन्होंने विक्रम किया। विक्रम 3 पांव रखा था, उसपे 1 पांव तुम्हारे ऊपर रखा था और फिर 2 पांव ऊपर रखा था, उससे तुम बहुत प्रसन्न हो। अगर वो बात भी नहीं है तो दूसरी एक बात और भी है, वो तो बहुत सीक्रेट है। क्या है? बोले वराह देव ने जब अवतार लिया था और तुम गर्भ सागर में गिर गई थी, वराहदेव अपने मुंह के ऊपर तुमको उठा के लेके आए थे। तो तुम वराहदेव का एकदम पर्सनल तुमको आलिंगन प्राप्त हुआ है, इसलिए लगता है तुम बहुत प्रसन्न हो रही हो। क्या कारण है तुम्हारा प्रसन्नता का? जरूर तुम कृष्ण को देखा है लगता है। ये था श्लोक का अनुवाद। अभी हम इसका देखेंगे, इसका कमेंट्री। श्रीधर स्वामी का भी देखना है तो देख सकते कमेंट्री एक बार। वैसे श्रीधर स्वामी का हम लोग को नीचे मिल जाएगा, उनके इंक्लूड ही रहता है उनका कमेंट्री में से। सनातन गोस्वामी का वृद्ध वैष्णव तोषणी एवं निर्जाति विज्ञापनेन अधिक दुखोदय विवशतया भूमौ निपातात् किं वा पदवी प्रार्थनेन पदवी स्मरणात् भूमौ दृष्टिं निधाय तस्यां स्निग्ध दुर्वांकुर आदि उद्गमं दृष्ट्वा श्री कृष्ण पादाब्ज स्पर्श जात पुलक जातम संभाव्य दृष्ट्वा तस्य परम सौभाग्य मत्वा परमार्थ आहु। तो सनातन गोस्वामी 3 कारण बता रहे हैं। पृथ्वी के पास गोपियां क्यों गई, पृथ्वी को अप्रोच क्यों किया, इसके 3 कारण बता रहे हैं। पहला कारण है कि निर्जाति विज्ञापन न दुखोदय विवशता भूमौ निपाता। पहला कारण यह है कि जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई भी पहले किसी ने उत्तर नहीं दिया, इतने वृक्षों को पूछने के बार पूछने के बाद भी कोई जब आंसर नहीं मिला, तो गोपियां बोलने की बहुत दुख हुआ, उनको बहुत दुखी हो रही थी कि पता नहीं चल रहा है कृष्ण कहाँ गए। तो वो लोग दुख में विवश हो गई और पृथ्वी पे गिर पड़ती है।
पृथ्वी पे गिर पड़ती है और पृथ्वी को गिर के पृथ्वी को ऊपर जैसे दंडवत करते ऐसे गिर जाती है और पृथ्वी को फिर प्रार्थना करे। एक ये कारण बता रहे भूमि के पास पहुंचने का। और दूसरा कारण श्री कृष्ण के पदवी प्रार्थना। वो लोग ने गोपियों ने पूछा था कि श्री कृष्ण के सुंदर चरणों को आपने देखा है क्या, यहाँ से कृष्ण गुजरे हैं क्या? तो उनके चरण की दर्शन करने की बात उन्होंने की पिछले श्लोकों में। तो इसलिए उनके चरण की जो छाप होती है, चिन्ह होती है, उसको देखने के लिए वो लोग ने भूमि के ऊपर दृष्टि की। कृष्ण के चरणों की चिन्हों को, लगता है कि उनके चरणों को, चिन्ह को देखने से हम लोग कृष्ण को ढूंढ पाएंगे कि चरण की छाप जा रहेगी, उसको फॉलो करने से कृष्ण मिलेंगे। तो इस आशा से उन्होंने भूमि के प्रति दृष्टि किया और ये कारण था। और तीसरा कारण, जब उन्होंने भूमि के प्रति दृष्टि किया तो भूमि के ऊपर जो दुर्वा घास होता है, दुर्वांकुर, और बहुत सारे घास थे, दुर्वा और ये सब घास उद्गम हो रहे और घास इतने सुंदर लग रहे, तो उससे उन घास को देख करके उनको ये आशा, ये कल्पना की गोपियों ने कि श्री कृष्ण का चरण का स्पर्श हुआ है, इसलिए पृथ्वी को पुलक हुआ है, पुलकित होकर के दुर्वा घास पुलक हो रहे हैं। इसलिए उसका परम सौभाग्य मतवा, पृथ्वी का परम सौभाग्य मान करके कि कृष्ण का स्पर्श हो रहा है इनके पृथ्वी को, इसलिए वो बहुत पुलकित हो रही है। इसलिए बहुत दुख आर्त्या मतलब बहुत दुखी होकर के वो पृथ्वी को प्रार्थना करती है। गोपियां क्या प्रार्थना करती है? तो केशव का अर्थ है यहाँ पर, केशव का अर्थ पूर्ववत मतलब पहले जैसे कहा गया था। अभी इसका मतलब हम लोग को पहले की बातों को याद रखना होगा, तभी भी आगे की कमेंट्री समझ पाएंगे, नहीं तो आगे की कमेंट्री नहीं समझ सकते। पूर्ववत क्या था? केशव का अर्थ पहले क्या था? तो केशव का अर्थ था क मतलब ब्रह्मा, इश मतलब शिव, और वह मतलब शासन करता, ब्रह्मा और शिव को शासन करने वाले केशव मतलब परमेश्वरत्म, परम ईश्वर है। केशव शब्द इस श्लोक में आया है। पहला अर्थ किंवा, दूसरा अर्थ प्रकृष्टः केशः सृन्त्यस्य इति, प्रकृष्टः केशः सृन्त्यस्य इति व्युत्पत्त्या परम सौंदर्यम सूचितम। दूसरा अर्थ है जिनके घुंघराले सुंदर काले बाल है, केशव, जिनके केश सुंदर केश वाले केशव, परम सुंदर। केशव मतलब परम सुंदर, जिनके बहुत सुंदर बाल है। दो अर्थ है केशव के। विशेषण भाषिति, विभाषी, विभाषी शब्द आया कि तुमको बहुत सुंदर लग रही हो तुम, ऐसे बोले गोपियां, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। भाषी मतलब लग रही हो, वे मतलब सुंदर, तुम सुंदर लग रही हो। तो कैसे उसका अर्थ बता रहे? विशेषण भाषी, शोभा विशेषण, अनन्य हेतु का उत्सव अभिप्रेतम। तो तुम्हारी शोभा बहुत सुंदर लग रही है पृथ्वी, तुम बहुत उत्सव मना रही हो, ऐसा लग रहा है। स्पर्श उत्सव लिखा है, उत्सव, तुम लग रहा है उत्सव मना रही हो। इस बात का उत्सव मना रही हो? अंग्रे अब्जादि रूप का अप्रयोग। तो यहाँ पर अंग्रे शब्द यूज हुआ। भगवान के जहां पर भी अंग्रे शब्द व चरण शब्द आएगा उसके साथ जरूर जरूर पंकज अंग्री, पंकज मतलब कमल का शब्द होता ही है जनरली। चरण बोलेंगे तो चरण कमल बोलेंगे, खाली चरण नहीं बोलते हैं। हमेशा ये नियम है भगवान का, जब भी कोई श्रीअंग का वर्णन होता है तो साथ में
कमल, अब्ज, पंकज कुछ न कुछ शब्द लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया गया अब्ज। क्यों? तो उसको बोल रहे हैं अप्रयोग। क्यों? कोमलत्वादि गुण, कोमलत्वादि गुण निरपेक्षेण अपि केवल तल स्पर्श मात्रेणैव तद उत्सव विवक्षया। ईदृश उत्सव केवलम अंग्रि संबंध मात्रेण न स्यात्। तो वो क्यों अब्ज शब्द का प्रयोग नहीं किया? बोल रहे हैं कोमलत्व आदि गुण निरपेक्षण अपि, कि जब हम बोलते हैं कि चरण कमल, तो चरण कमल बोलने का अर्थ है कि उनके कमल, उनके जो भगवान के चरण है वो कमल के जैसे कोमल है, ऐसा ऐसा बोलने के लिए चरण कमल बोलते हैं। पंकज अंग्री, जिनके अंग्री पंकज जैसी है, तो इसका मतलब उनके चरण कोमल है। लेकिन बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि भगवान के चरण कोमल हो चाहे नहीं हो, अगर कोमल नहीं भी है, अगर कोमल नहीं भी है, लेकिन उनका जो तल है, उनका स्पर्श होने से ही उत्सव, बहुत आनंदित पृथ्वी कोई भी हो सकता है। मतलब अगर भगवान का चरण हमको स्पर्श करना है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि प्रभु आपका वो कोमल चरण हमको स्पर्श करवाइए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। इस अर्थ में बोल रहे हैं कि कैसा भी हो चरण, हो चाहे कोमल हो चाहे कठोर हो, उसका मतलब नहीं, उनका स्पर्श मतलब स्पर्श, उनका स्पर्श से ही कि स्पर्श करने की बात हो रही है, इसलिए वो कोमल शब्द को हटा दिया गया। जैसे हम आपको बोलें कि हमको थोड़ा आप रोटी दीजिए, लेकिन रोटी थोड़ा ठीक मीठा होना चाहिए, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। रोटी थोड़ा पक्का होना चाहिए, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। इस भाव से बोल रहे हैं कि कैसे भी चरण हो, वो चरण तुमको स्पर्श हुआ है और उसे तुम बहुत आनंदित हो। तो ईदृश उत्सव, लेकिन तुम बहुत बहुत ज्यादा आनंदित दिख रही हो। लगता है खाली चरण स्पर्श की बात नहीं है, तुमको और भी कृपा मिली है कृष्ण की। चरण स्पर्श से इतना आनंद नहीं होता है। ऐसे गोपियां कल्पना करके और एक बात बोली, आहो, अगली बात बोल रही है। वो क्या बोल रही है? पक्षांतरम, दूसरा अर्थ बता रही है। दूसरा अर्थ अन्यते व्यंजितम, मतलब दूसरे किसी आचार्य ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आज सनातन गोस्वामी इसको छोड़ दे रहे। अभी कौन से आचार्य, वो नाम नहीं लिखा है इन्होंने, हमको फिर उन आचार्य का कमेंट्री पढ़ने से तभी समझ में आएगा। अन्यते मतलब मेरे ख्याल से वल्लभाचार्य की बात करते होंगे वो, उनको वल्लभाचार्य कमेंट्री पर भी नहीं पढ़ रहे हम लोग, बहुत फिर टाइम चला जाता है। लेकिन हम आगे बढ़ जाए, इनका जो अर्थ है वही सुनते हैं हम। इनका अर्थ क्या है सनातन गोस्वामी का? यदवा, अभी अपना अर्थ बता रहे वो, तादृश शोभा अदृष्ट्या, तादृश शोभा अदृष्ट्या श्री कृष्ण पाद स्पर्शनेव तम उत्सवम संभाव्य। सर्वोत्कृष्टतां सूचयन्त्य तस्या सौभाग्यम अधिकम वर्णयन्ति अपेति। कहते हैं तो मैं बोल देता हूँ वो क्या है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा है कि गोपियां कहने की आपको शायद वराहदेव का स्पर्श हुआ था, वराहदेव ने आपको आलिंगन किया, इसलिए आपको इतना प्रसन्न दिख रहा है, इसलिए आप इतनी ज्यादा प्रसन्न दिख रही है। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं,
उनका मत अलग है। वो बोल रहे हैं कि वराहदेव का आलिंगन हुआ था, फिर भी इतनी आनंदित पृथ्वी नहीं दिख रही थी पहले, लेकिन अभी कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ है तब उनका आनंद बढ़ गया है। इसलिए कृष्ण का चरण स्पर्श करने से सौभाग्य उनका और बढ़ गया है। पहले तो हमारे वामन देव ने उनको पांव स्पर्श किया, तब उनका भाग्य हुआ है पृथ्वी का एक बार। उसके बाद जब वराह देव ने उनको उठाया और आलिंगन किया तो उनका सौभाग्य और बढ़ गया। लेकिन जब से श्री कृष्ण ने उनका पांव स्पर्श कर दिया पृथ्वी को, पृथ्वी का सौभाग्य और भी अधिक बढ़ गया है। ये है सनातन गोस्वामी। अंग्रे संभवो अयम उत्सव अपि किम त्रिविक्रमस्य लोकत्रयाक्रमणार्थं प्रकटित ऐश्वर्य श्री विष्णु पादेन सर्वाक्रमणात् बभूव। बोलते क्या जो त्रिविक्रम भगवान वामन देव ने जब 3 पद भूमि को आक्रमण किया था, मतलब एक के बाद एक 3 पद भूमि जो बलि के ऊपर आक्रमण करने के लिए किया था, उसमें भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट किया था, विराट रूप धारण किया था। भगवान ने विराट रूप धारण किया था, उसका एक पांव उन्होंने पृथ्वी के ऊपर रखा था। क्या इसलिए तुम इतने आनंदित हो? नहीं वह नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। तदानीम ईदृशो उत्सव शोभा विशेषा संपत्ति। नहीं, पहले तो तुमको इतना आनंदित नहीं दिखा रहा था। अहो न भवतु वा पाद स्पर्शात् तत्र त्व उद्धारार्थं प्रकृति महावराह मूर्ते भगवत साक्षात संभोगपि न सिद्ध इत्याहु आहो यद्वा। तो फिर नहीं ऐसा नहीं है। वराहदेव वामन देव का पांव स्पर्श करने से ऐसा नहीं है। तो क्या है? अहो न भवतु वा पाद स्पर्शात्, इनके पांव स्पर्श से तुमको इतना नहीं हुआ है आनंद। वामन देव का, वामन देव के पांव से इतना तुम आनंदित नहीं हुई हो। अहो न भवतु वा पाद स्पर्श मात्रा तद उद्धारार्थम, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, मतलब पृथ्वी जो गिर गई थी तो प्रकटित महावराह मूर्ति, जो महावराह भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने साक्षात तुमको आलिंगन किया था। उससे भी उस समय भी तुमको इतना आनंदित नहीं दिखाई दिया। अहो ये थी यद्वा, तो फिर क्या है? तो फिर कहते हैं अंग्र संभव उत्सव विक्रम पाद स्पर्शात् कारणात् किंवा वराहमूर्ति परिभ्रमण करने न बभुव तत् कथय इति शेष। तो कहते हैं कि इस तरह से तुमको पहले भी भगवान के 2 अवतार ने कृपा किया था, लेकिन उसमें तुमको इतना आनंदित नहीं दिखाई दिया। लेकिन अभी स्वयं भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करके तुम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही हो। इति सर्वथा श्री कृष्ण से तत् सकाशान महात्मा विशेष सूचित। इति सर्वथा श्री कृष्ण से तत् सकाशान महात्मा विशेष। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा इसमें वर्धन हो रही है। अतस्तद विरह कथम सहम इति, इसलिए कहते हैं कि हम लोग उनका विरह कैसे सहन करें, जो कृष्ण इतने कृपालु, आप इतने आनंदित हो रहे हो उनके स्पर्श, तो हम लोग कैसे सहन करेंगे। किम वा त्वं परम सुभगा वयं च तद्रहिता दुर्भगा एवेति कृपया तत्पदवीं सम्यक दर्शयति भाव। और क्या, क्यों ऐसा बोल रही है गोपियां? का भाव क्या है बोलने के पीछे? तो भाव ये है कि तुम बड़ी सौभाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान का चरण स्पर्श हो रहा है, और हम लोग बड़ी दुर्भाग्य हैं क्योंकि हम श्री कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। ये भाव है गोपियों का। अब ये विश्वनाथ जी का सारार्थ दर्शनी देखते हैं। मेरा इधर ओके। कहो कि मैं थे विष्णु समाधि, कहो कि मैं थे विष्णु समाधि मत्वा अस्मत् प्रश्नम न शृण्वन्ति
किं वा तीर्थवासिनोऽमि कठोरा एव यत् किमपि न वदन्ति हम हो के जानन्ति के वा तं न जानन्ति इति अनिश्चित तत्वा तीर्थवासिनोऽमि कथं वृथा निन्दन्ते यो जनस्तम् अपश्यत् जानाति एवेति निश्चित तत्वो भवति पृच्छताम् इति कदाचित् उक्ते प्रिय सखी स एव जन खलु कस्तं किं त्वं जानासि इति सर्वाभिः पृष्टा सा तर्जन्या पृथ्वीं दर्शयामास ततश्च सत्यमेव तं ब्रूषे यत्र तत्र सवर्तते। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा समझ पढ़ना पड़ेगा। अहो, तो वृक्ष लोग क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसका कारण बता रहे। वृक्षों के पास गए थे गोपियां, वो लोग क्यों उत्तर नहीं दे रहे? उसका कारण है कि विष्णु समाधि मत्वात् अस्मत् प्रश्नम न श्रवन्ति। ये जो वृक्ष लोग हैं भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे, हम लोग पिछले श्लोक में सुना था, स्मरण कर रहे थे, तो स्मरण करके समाधि में चले गए। तो समाधि में चले गए हैं, इसलिए हमारे प्रश्न को सुन नहीं पा रहे हैं। लोग विष्णु की समाधि में मग्न है, इसलिए हमारे प्रश्न सुन नहीं रहे। ये पहला कारण बता रहे गोपियां, वृक्षों को उत्तर नहीं देगा। किम वा तीर्थवासिनो अमी कठोरा एवं, ये तीर्थवासी बहुत कठोर हृदय वाले तीर्थवासी हैं। हम लोग कलयुग में देखते हैं कि तीर्थ के पांडा लोग कैसे होते हैं, हम लोग सब जानते हैं। तो तीर्थवासी ऐसे हो जाते कठोर हृदय वाले, ऐसा कल्पना करें गोपी। दूसरा, यत किमपि न वदन्ति, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम वो के जानन्ति के वा तम न जानन्ति इति निश्चित तत्वा तीर्थवासिनोऽपि अमी कथं वृथा निन्दते। यो जन तम अपश्यत् जानाति एवेति निश्चित तत्वो भवति स पृच्छताम् इति क्वचित् कयाचित् उक्ते। एक मिनट में इसका थोड़ा मेरे पास और एक है हिंदी वाला, वो देखता हूँ। नहीं आएगा। हम लोग का अध्याय श्लोक नंबर कितना चल रहा है? 10। 10वां अध्याय 10वां श्लोक ये रहा। हिंदी देख लेता हूँ। हाँ, बोल रहे हैं, अहो, ये वृक्ष विष्णु की समाधि में मग्न होने के कारण हमारा प्रश्न नहीं सुन पा रहे हैं, पहला। अथवा ये तीर्थवासी कठोर स्वभाव के ही होते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे, ये दूसरा कारण। ये कहते हैं, हाय, इन तीर्थवासियों के बीच में कौन कृष्ण को जानता है और कौन नहीं जानता है, हम कैसे समझेंगे? ये वृक्ष, कौन वृक्ष जान रहा है कौन नहीं जान रहा, हमको कैसे पता? अतः अनिश्चित बात है, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग जानते कि नहीं। इसलिए हमें तीर्थवासियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे गोपियों ने सोचा। तीर्थवासी की हम निंदा क्यों करें, ऐसे सोचा। जिसने उन्हें देखा है वही उन्हें जानता है, यथा तथा वही निश्चित है, इसलिए उसी से पूछना कर्तव्य है।
तो जिसने एक्चुअली उसने देखा है, 100% श्योर है, उसको ही पूछना चाहिए। हम 100% श्योर है कि इसने देखा होगा, उसको ही पूछना चाहिए, ऐसा सोचा गोपियों ने। हे प्रिय सखी, किसी सखी के द्वारा ऐसा कहने पर, एक सखी ने ऐसा बोला, एक गोपी ने ऐसा बोला, एक गोपी ऐसा कहती है कि हम लोग उसको पूछेंगे कि जो 100% श्योर, अभी इधर उधर नहीं भटकना है हम लोग को, इससे हम लोग का अब गलती हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। हम लोग सोच रहे कि बोल नहीं रहे लोग, ऐसा एक गोपी ने बोला। तो बोले, दूसरी गोपी बोले, हे प्रिय सखी, यहाँ ऐसा कौन है जो कृष्ण ने देखा है? तो दूसरी गोपी बोलती है कि अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो जरूर कृष्ण को देखा हो, ऐसा कौन है बताइए, ऐसा एक गोपी ने पूछा। तब वो लोग, अब वे लोग कंक्लूड करती है, अच्छा अच्छा अच्छा, यदि तुम जानती हो कि किसी ने कृष्ण को देखा है तो उसका नाम बतलाओ। अगर तुम जानती हो तो फिर हम उसको पकड़ेंगे। सभी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सब ने ऐसा, सब गोपियां उसको पकड़ी कि तुम बताओ किसने किसने कृष्ण को देखा है, कृष्ण कृष्ण देखा है। तब वो सखी क्या करती है, तर्जनी के द्वारा पृथ्वी को संकेत किया। तब उस गोपी ने अपने तर्जनी के द्वारा कृष्ण की ओर, पृथ्वी की ओर संकेत किया। ठीक है, तो पृथ्वी की ओर उसने उंगली की कि ये पृथ्वी है, ये जानती है। तब लोग पृथ्वी के पास जाते, सात अर्जना पृथ्वी में दर्शयामास, पृथ्वी को दिखा। ततश्च सत्यमेव त्वं ब्रूषे, तब सब लोग बोलते हैं, हाँ तुम सच बोल रही हो सखी, तुम सच बोल रही हो। यत्र तत्र च वर्तते सा पृथ्वीति पृथ्व्या अशतद विच्छेदो नास्ति। तब गोपियों ने कहा, तुम सच बोल रही हो सखी, हम लोग खाली फोकट में इतना दिन दिमाग लड़ा रहे थे। अरे कृष्ण कहीं पर भी हो, यत्र तत्र च वर्तते, कहीं पर भी हो, वो पृथ्वी के ऊपर तो रहेगा ही कृष्ण, उनका पांव, तो इसलिए पृथ्वी थे उसका विच्छेद नहीं होगा। पृथ्वी से उस गोपी का विच्छेद, कृष्ण का विच्छेद होना नहीं है। इसलिए कृष्ण से पितृवर्ग, सखी वर्ग, दास वर्गेभ्योपि विरह दुखान अभिज्ञत्वा पृथ्व्येव धन्या इत्यतो अस्यां पूर्वे पूर्वेष्विव प्रश्नो न घटते। हाँ, किम त्वरया किम त्वस्या प्राचीनम तप एव जिज्ञासम यत् कृत्वा कृष्ण विरा अत्यंत अभावत्यो वयमपि भवाम इति विमृश्य पृच्छन्ति। तो गोपिया ने सोचा, ये जो पृथ्वी है इनका तो कृष्ण से विच्छेद ही नहीं हो रहा है, हमेशा कृष्ण पृथ्वी के ऊपर अपना पांव रखते हैं। इसलिए कृष्ण से पितृवर्ग, जो कृष्ण के पितृवर्ग है, जो उनके पिता के तुल्य जो लोग हैं, सखी वर्ग कृष्ण के जो सखा के तुल्य हैं, और दास वर्ग जो कृष्ण के दास के जैसे हैं, वर्गीय वर्गीय भ्यो अपि, उस सब उन सब से भी ज्यादा विरह दुखान अभिज्ञत्वात्, अपि विरह दुखान अनभिज्ञत्वा पृथ्व्येव धन्या। हाँ, तो इवन पितृवर्ग जो है, भगवान के सखा वृंद है, भगवान के दास लोग, उनसे भी पृथ्वी को विरह कम होता है भगवान का, उतना भी कृष्ण को, पृथ्वी को विच्छेद नहीं हुआ, उनसे भी ज्यादा पृथ्वी धन्य है, भाग्यवान है। दासों से भी भाग्यवान है, सखाओं से भाग्यवान है, पिताओं से भाग्यवान है। गोपियों को तो कृष्ण का मिलन टफ होता है, लेकिन उनके जो पितृवर्ग है कृष्ण को प्रतिदिन मिलते हैं, सखा लोग में मिलते हैं, दास लोग में मिलते हैं, लेकिन पृथ्वी सबसे धन्य है, ऐसा वो लोग ने सोचा, क्योंकि इनका कभी भगवान से विच्छेद नहीं हो रहा है। तो अश्याम, इसलिए इस पृथ्वी को हम लोग पूर्व से प्रश्न न घटते, जो पहले हमने जब सबको प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न इसको हम नहीं पूछेंगे। अस्याम पूर्व पूर्वेश प्रश्न न घटते। हाँ, एक के बाद एक ऐसा हमको सीक्वेंस में प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्या प्राचीनम तप एव जिज्ञासम यत् कृत्वा
कृष्ण वीरा अत्यंत अभावत्यो वयमपि भवाम इति विमृश्य। हम इनको डायरेक्ट ये पूछने की जरूरत नहीं है पहले जैसा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण ये नहीं करके हमको ऐसा प्रश्न पूछे कि तुमने क्या तपस्या किया था जिसकी वजह से तुमको कृष्ण का विच्छेद नहीं हो रहा है। मतलब रूट कोज, डिसीज को ऊपर से ट्रीटमेंट नहीं करना है, डिसीज को रूट कोज को ट्रीट करना है, मतलब परमानेंटली प्रॉब्लम को सोल्व करना है। कि कृष्ण पृथ्वी देवी कभी श्री कृष्ण का विच्छेद नहीं होता है, तो हमारा भी श्री कृष्ण से कभी विच्छेद नहीं हो, इसके लिए हम इनको पूछते हैं कि तुमने क्या तपस्या किया था कि तुम्हारा कृष्ण से विच्छेद नहीं हुआ कभी। हम लोग को भी ऐसा सौभाग्य चाहिए, ये प्रश्न पूछ रही है। कृष्ण कहाँ है ये सब प्रश्न अभी पूछने की जरूरत नहीं है, पहले यही पूछते कि क्या तुमने किया, हम वही कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए पूछा कि किम ते क्षिति कृत तप, क्षिति पृथ्वी देवी आपने क्या तपस्या किया। ये क्षिते त्वया किम तप कृतम, ये पृथ्वी तुमने क्या तपस्या किया है। यतस्त्वं केशवस्य अंग्रि स्पर्शेन, तुम केशव के चरण का स्पर्श करके उत्सव में हो, तुम साथ विभासी बहुत सुंदर लग रही हो। कैसे सुंदर, यह तो अंग रुहे तृणाम अंकुरे उद्गत छद्वी उत्पुलकिता। तुम्हारे शरीर के ऊपर जो तृण है, घास है, वो घास उग रहा है, उससे लग रहा है कि तुम बहुत पुलकित हो रही हो। तो फिर आगे पुलक युक्त यत्र तत्र वर्तते तत्रैव वाम अंग्रेभ्याम पृष्ठेव तिष्ठति। ऐसा बात है, कृष्ण चाहे कहीं पर भी हो, इस समय इस क्षण में अभी कृष्ण जहां पर भी होंगे जरूर अपने पांव से तुमको स्पर्श करके ही खड़े होंगे। वो अभी भी तुम कृष्ण का कहीं ना कहीं अनुभव कर रही हो। पृष्ठेव तिष्ठति इति कृष्णांग संग सुखम तब रात्रि दिवम व्याप्येव। इसलिए श्री कृष्ण का जो अंग संग है, श्री कृष्ण का जो शरीर का एक अंग है पांव, उसका जो संग है, उसका जो सुख है, वो तुमको दिन रात रात्रि दिवम रात दिन तुमको श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श रात दिन मिलता रहता है, उसका विच्छेद नहीं होता। यह तो अभूत, ऐसा तुमको कृपा मिला। यह तो अभूत तपो वक्तुम अरसी, वो कैसी तपस्या तुमने की है कि तुम्हारा ऐसा सौभाग्य हुआ है, वो कृपा करके हमको बताओ। वयम विरहिण्यो दुर्भगात तत्श्रुत्वापि कित्वार्थी भवाम। तो हम लोग इतनी कृष्ण के विरह में व्यथित हो गए हैं कि हम लोग बहुत दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्री कृष्ण के विरह में पड़ गए हैं। और हम लोग हो सकता है वो तपस्या नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन उसको अगर श्रवण भी करेंगे तपस्या के बारे में, तो भी हम ही कृतार्थ हो जाएंगे। श्रवण करने से भी हम कृतार्थ हो जाएंगे। मतलब गोपियां सोच रही है कि यहाँ तो अभी पृथ्वी को पूछेंगे तो अभी तो तपस्या करने जाएंगे, फिर वापस आएंगे, इतना दिन थोड़ी विरह को सहन करेंगे। लेकिन तपस्या के बारे में श्रवण करने से भी फायदा होता है, तो श्रवण करने से भी हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। तद ब्रुवाणाम ताम अभिलक्ष्य पुरावृत्त स्मरणा स्वमेव अभ्युहंति। ऐसे बोलते बोलते पृथ्वी को देख रही थी गोपियां, और देखते देखते उनको पुरानी बातें याद आ गई। मतलब पहले वो लोग पृथ्वी को पूछी कि तुमने क्या तपस्या की थी, फिर उनको याद आ गया पृथ्वी का पुराना घटना, और याद आकर के वो खुद से बोलने लगी। क्या बोलती है? उरुक्रमस्य त्रिविक्रम देवस्य विक्रमात् यो अंघ्रि संभव अंघ्रिपात अंघ्रि प्राप्ति वो प्राप्तो संपूर्व। उरुक्रमस्य मतलब भगवान उरुक्रम, किनका नाम है? त्रिविक्रम। त्रिविक्रम किनका नाम है? वामन देव का। भगवान वामन देव का 2-3 नाम है। एक नाम है वामन देव,
दूसरा नाम है उपेंद्र। उपेंद्र क्यों? क्योंकि इंद्र के छोटे भाई है। और तीसरा नाम है त्रिविक्रम, क्योंकि उन्होंने 3 पांव उन्होंने रखा था, इसलिए उनका नाम है त्रिविक्रम। वामन देव के 3 नाम है। वो वामन देव ने जब विक्रम किया था, मतलब 3 पांव रखा था, उस समय यो अंघ्रि संभवा, अंघ्रि प्राप्ति, उसको तुम उस समय तुमको चरण की प्राप्ति हुई। भू प्राप्तो, तुमको पृथ्वी को प्राप्त हुआ था। संपूर्व ये तत्र यदि महाभार शहन लक्षणम ये तपस तदेव किम यत्यर्थम। पहला तपस्या ये बता रही है गोपियां कि तुमने शायद कौन सी तपस्या की है। जब वराहदेव विक्रम भगवान ने, रुक्रम भगवान ने जब 3 पांव विराट रूप धारण किया, तो पहला पांव पृथ्वी के ऊपर रखा था और विराट रूप, और दूसरा पांव जब ऊपर उठाया ब्रह्मांड फट गया, तो उस समय उनका जो भार, भगवान विराट रूप का भार एक पांव के ऊपर जो पृथ्वी ने सहन किया, वो तपस्या शायद क्या तुम्हारी वो तपस्या फल रही है अभी? क्योंकि वो भार बहुत था। भगवान जब पांव रखे थे, मतलब दूसरा पृथ्वी शायद पाताल में चली जाएगी। आप लोग को पता होगी जब गंगा देवी पृथ्वी पे आने वाली थी, वहां से ब्रह्मलोक से, गंगा देवी क्या बोली कि अगर मैं पृथ्वी पे जाऊंगी तो मेरा जो फोर्स है, वजन, फोर्स, स्पीड, उससे पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, मेरा फोर्स सहन नहीं कर पाएगी, ऐसा बोली थी गंगा देवी। और कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि पृथ्वी, कोई बड़े बड़े असुर लोग पृथ्वी को भार से दबा देते, लेकिन भगवान का भार पृथ्वी ने सहन कर लिया। ये तपस्या तुमने की लगता है। वे इति निश्चय पाद पूर्णिमा आहो श्वेत महावराह वपुषा, पाद पाद पूर्णिमा आहो श्वेत महावराह वपुष परिरंभण तदीय दृढ़ परिरंभणो उथ पीड़ा प्राप्ति लक्षणम तपस तदेव किमिति अर्थम। दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि वराहदेव ने तुमको जो उठाया था, तुमको, तुम पृथ्वी, पानी में पड़ी हुई थी पृथ्वी, और वराह ने तुमको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया था। बहुत जोर से तुमको दोनों हाथों से वराहदेव ने पकड़ा था, पकड़ के उठाया था। बाद में दांत के ऊपर धारण किया, लेकिन पहले तो पकड़ा हाथों से। तो जब वराहदेव ने तुमको जो जोर से आलिंगन करके पकड़ा था, और उस समय उनके जो स्पर्श की जो पीड़ा थी, बहुत जोर से पकड़ा था, वो पीड़ा को तुमने सहन किया, वो तपस्या तुम्हारी। कि भगवान वराहदेव तो वराहदेव है, महावरा है, शुक्र रूप है महा, और उन्होंने पृथ्वी को दोनों हाथों से ऐसा पकड़ा जोर से ताकि गिर नहीं जाए पृथ्वी। तो वो उनका जो वराहदेव ने जिस प्रकार से जोर से दबाया पृथ्वी को पकड़ के, वो तपस्या सहन की तुमने। और फिर कहते अन्याभि दुर्लभम तवे तद उत्सव प्राप्ति साधनम, अन्याभि दुर्लभम तदेव उत्सव प्राप्ति साधनम यत तपस तदपि, ये अत्यंत दुर्लभ, ये तुमको जो उत्सव, तुम जो अभी आनंदित हो रही हो, इस आनंदित होने के पीछे जो साधन जो तुमने किया, तपस्या किया, वो अति दुर्लभ तपस्या है। ऐसी तपस्या तो और किसी को करने को सौभाग्य भी नहीं मिलेगा। स्त्रिया तव पुरुष संग लक्षणत्वात् सुखमयम एवेति नास्ति तत्व अन्ना धन्य इति भाव। कहते हैं कि ये तो तपस्या भी बहुत दुर्लभ है, ऐसी तपस्या भी किसी को नहीं मिलेगी कि भगवान के चरण का भार सहन करना, भगवान के आलिंगन कर रहे हैं उसका तुमको सहन करना पड़ा, तो ऐसी तपस्या भी तो दुर्लभ होती है। फिर भी तुम बहुत धन्य हो कि ऐसी तपस्या की, सुखमय तपस्या की, आनंद की तपस्या, लेकिन उसके फलस्वरूप तुमको भगवान के चरण की प्राप्ति हुई है। हरे कृष्ण। तो ये यही था चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री मैं रखता हूँ। प्रश्न होंगे तो यस।
और आप लोग जो लोग प्रश्न का उत्तर देंगे हाथ उठाइएगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। पहला प्रश्न ये है कि प्रभुपाद बताते हैं कि हमें जरूरी नहीं है कि भगवान को देखना जरूरी नहीं है, हम उसके अलावा भी हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद ने कैसे अनुभव करते उसका भी प्रभुपाद ने आंसर दिया, और साथ ही साथ उसका एक एग्जाम्पल देके भी उसको हम प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। इसको बताइए कि प्रभुपाद का एग्जाम्पल के साथ में बताइए कि किस प्रकार हम भगवान को बिना देखे अनुभव कर सकते हैं। कौन बोलना चाहेंगे? हाथ उठाइएगा। हाँ, आप पूछ सकते हैं प्रभु जी, आप पूछ दीजिए, मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, रत्ना अग्रवाल माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो हम कृष्ण शब्द, जो हरे कृष्णा महामंत्र का शब्द करते हैं, वो शब्द स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण के ही रूप है। तो ये रूप हम देख नहीं पाते आंखों से, लेकिन क्या हम सब कुछ देख पाते हैं? क्या हम पंच इंद्रियों के द्वारा जो 5 रसों का आस्वादन करते हैं, उसमें हम लोग ध्वनि का भी आस्वादन करते हैं। तो वो ध्वनि के द्वारा हम इसको हवा के एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हवा जैसे सुन बहुत जोर से हवा आती है तो उसका एक ध्वनि होता है, वो हम सुन पाते हैं और उस हवा को हम लोग अनुभव कर पाते हैं। तो इस तरह से हम कृष्ण को जब हम महामंत्र के द्वारा हम आह्वान करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो वो साक्षात, अगर हम सच्चे भक्ति से करते हैं तो वो कृष्ण का रूप साक्षात आ जाता है। तो ऐसा हमने समझा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां पृथ्वी को क्यों अप्रोच किए? इसका 3 कारण प्रभु जी ने बताया, बोलिएगा। बेबी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। কারণ হচ্ছে যখন কোনো माता जी आवाज क्लियर नहीं है। आपका आवाज हमेशा प्रॉब्लम था, আপনার মোবাইলে অল টাইম প্রবলেম থাকে, ওখানে কোনো উইন্ডো ফিন্ডো খোলা আছে বা কিছু একটা আছে, ব্যাপার আছে, যার জন্য প্রবলেম হয় हमेशा। क्या माता जी? सविता शाह माता जी बोलिएगा माता जी। पंखा चल से पाथ को भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिए शब्द। हाँ, गोपिया ने पृथ्वी को अप्रोच किया क्योंकि एक नंबर तो है, दुख में वो बहुत विवश हो गई थी और वो पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं दुख के मारे, और दंडवत की तरह वो गिर पड़ती हैं। और दूसरा कारण है कृष्ण का चरण चिन्ह को देखने के लिए, कि कृष्ण अगर वहां से गए होंगे तो उनका चरण चिन्ह जरूर भूमि पे दिख रहा होगा, तो देखने के लिए उन्होंने दृष्टि किया। और पृथ्वी बहुत प्रफुल्लित लग रही थी क्योंकि उनके ऊपर जो दुर्वा घास उग रहे थे हरा हरा, उनको लगा कि भगवान उनको स्पर्श करते हुए गए हैं, इसीलिए दुर्वा घास उगा है। ये 3 कारण से उन्होंने पृथ्वी को अप्रोच किया। हरि बोल। हाँ, इधर केशव शब्द आया, इसका अर्थ बताइएगा। इस शब्द का अर्थ बताइएगा। दो अर्थ। दो अर्थ। सातो मलिक प्रभु जी, सातो मलिक बोलिएगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक तो केशव शब्द का अर्थ है पूर्ववत, मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव, और ब मतलब शासन करता मतलब विष्णु, और दूसरा अर्थ हुआ जिनका सुंदर केश है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, इस श्लोका में केवल भगवान का चरण कमल को केवल अंग्री शब्द सिर्फ यूज किया है। हमेशा हम लोग सुनते हैं भगवान का चरण कमल को डिस्क्राइब करने के टाइम में पंकजांग्री ये सब बोलता है, लेकिन इधर केवल अंग्री शब्द यूज किया है। इसका कारण क्या है? सनातन गोस्वामी पाद का टीका से बताइएगा। रासमणी ललिता देवी माता जी। इधर बताया गया है कि सनातन गोस्वामी बताते भगवान का चरण यदि कोमल नहीं भी है तो हमको कृष्ण का चरण स्पर्श का भाव रखना चाहिए, कि अगर कठोर भी है तो हमें कृष्ण का रखना, माने चरण का स्पर्श रखना चाहिए। जैसे केवल चरण स्पर्श से इतना आनंद होता है
यही बात नहीं है, और भी कोई दूसरी कृपा हुई, जैसे पृथ्वी देव को गोपिया बोल रही है कि अगर दूसरी भी कृपा होगी तो कोई बात नहीं है, पर श्री कृष्ण का हमें चरण का, कठोर चरण की भी आशा रखनी चाहिए। अरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे पृथ्वी का आनंद, इधर देखिए, पृथ्वी का आनंद और भी बढ़ गई है। हाँ, गोपिया बोल रही है तुम्हारा आनंद और भी बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? पहले भी पृथ्वी आनंद में थे, अभी और बढ़ गई है, इसका कारण क्या है? सुधा गुप्ता माता जी, आप पहले का कारण बताइएगा और अभी का कारण बताइए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलती है कि पहले वरादेव का तुमको स्पर्श मिला था, आलिंगन मिला था, तो उससे तुम प्रसन्न हो रहे थे। वरादेव जब पृथ्वी पाताल में चली गई थी तो वरादेव हाथ के स्पर्श से उनको ऊपर लाए थे और फिर इससे उनको आलिंगन मिला था, उनका स्पर्श मिला था। फिर चरण, कृष्ण के चरण स्पर्श से उनको वो आनंदित हो रही थी। और फिर उसके वामन देव के 3 पांव, और वामन देव के ने जो विराट रूप धारण किया था, तो पहले पृथ्वी पर पांव रखा था, फिर आकाश पर जब पांव रख रहे थे तो उसका भार उन्होंने, पृथ्वी ने सह नहीं बोलना है मतलब, अभी वो नहीं बोली है। पृथ्वी का आनंद का आप बोला है और अभी और बढ़ गई है, इसका कारण क्या है? ये तो गोपिया बोल रहे हैं अभी आपका आनंद और बढ़ गई है। बहुत सिंपल आंसर है। हरे कृष्णा मतलब कि उनको स्पर्श मिला था। सौभाग्यवान बोल रही है, हम लोग दुर्भाग्यवान हैं क्योंकि उनका स्पर्श मिला, कृष्ण का पाद स्पर्श मिला है, इसलिए और भी उनका आनंद आनंदित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलने का गोपिया का क्या भाव है? उनका क्या भाव है? पृथ्वी को ऐसे बोलने का क्या भाव है? रत्ना अग्रवाल माता जी, आप बोलिएगा। लोगों ने अभी तक नहीं बोला। हरे कृष्णा। हाँ, क्या हुआ प्रभु? हाँ, माता जी बोलिए। माता जी, आप माता जी, इसका ये भाव है से पृथ्वी माता जी, असल में ना मैं जैसे उन्होंने ये कौन सा मतलब क्वेश्चन हम ठीक से समझ नहीं पाए माता जी, बात ये है। गोपिया बोल रहे हैं ना, तुम्हारा गोपिया ये सब बोलने का क्या भाव है? पृथ्वी को ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या भाव है? उनका क्या अच्छा, भाव है? हाँ, उनका गोपियों का ये भाव है कि वो चाहती है कि जिस तरह पृथ्वी को इतना अच्छा वो कृष्ण का हमेशा कभी वियोग नहीं हुआ उनसे, क्योंकि पृथ्वी माता हमेशा उनके इतना मतलब एग्जाम्पल दिया। माता ही घुमा रही है, और किसी को पूछिए, और किसी को पूछिए, जो स्पष्ट बोल देंगे तुरंत उनको पूछिए। बेबी गुप्ता माता जी, आप ईयरफोन मत यूज कीजिए, ऐसे बोल दीजिए माता जी। बेबी गुप्ता माता जी। হ্যাঁ, গোপীরা ভাব প্রকাশ করছে যে পৃথিবী দেবী তুমি খুব সৌভাগ্যবতী যে কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা তো এই থেকে বঞ্চিত আছি, আমাদের ভাগ্যটা খারাপ আছে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। हरि बोल। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका से वृक्ष क्यों उत्तर नहीं दे पाया, इसका रीजन 3 उत्तर दिया है प्रभु जी ने, नहीं दो क्या है? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। वृक्ष उत्तर नहीं दे रहे क्योंकि ये भगवान, गोपिया सोच रही है कि वृक्ष लोग उत्तर नहीं दे रहे क्योंकि ये भगवान का स्मरण करते हुए समाधि में चले गए हैं, इसलिए इन लोगों को हम लोग का प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए ये उत्तर नहीं दे रहे। और ये तीर्थवासी लोग बहुत कठोर होते हैं, इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं। हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोपी जी और एक कारण था, और एक कारण बताया। हाँ बोलिए। हाँ, वृक्ष बता रहे हम लोग नहीं जानते कृष्ण ने कहा गया है, हम लोग नहीं जानते क्या वृक्ष कृष्ण को जानते हैं कि नहीं जानते, इसलिए वृक्ष का निंदा नहीं करना चाहिए। ओके, कारण बता ठीक है आगे। ठीक है। क्वेश्चन है, एक गोपी पृथ्वी के ओर उंगली किया है, पृथ्वी के ओर देखे उंगली किया है, इसका क्या कारण है? कौन बताएंगे? रासमणि माता जी। हाँ, तो गोपिया
अपनी तर्जनी अंगुली से इशारे करती है, पृथ्वी देवी की तरफ दिखाती है। गोपिया कहती है कि तुम सच बोल रही हो, कृष्ण कहीं भी हो तो उनका पांव तो पृथ्वी पर होगा ही जरूर। पृथ्वी को टच करके ही कृष्ण जा रहे हैं। और गोपिया ने सोचा कि पृथ्वी देवी तो कृष्ण के विच्छेद से ही विच्छेद नहीं हो सकती है, पृथ्वी देवी से कभी भी कृष्ण का विच्छेद नहीं हो रहा है। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां पृथ्वी को क्या प्रश्न पूछना चाहती है? क्या प्रश्न पूछना चाहती है? हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। दूसरा कोई बोलेगा, सुधा गुप्ता माता जी आप बोलेगा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, प्रश्न पूछ रही है कि वो इसलिए ये प्रश्न पूछना चाह रही है, ये वो बोल रहे हैं कि हम लोग परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पहले जो हम लोग ने पूछा था वो अभी हम नहीं पूछेंगे। मतलब तुमने जो तपस्या किया है, तुम्हारा कृष्ण से कभी नहीं हो रहा है और तुम इतने उत्साह में हो, उनका चरण स्पर्श मिला है। हम ये क्वेश्चन है, तुमने क्या तपस्या किया है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी देवी को क्या कृपा मिला है? ऑलमोस्ट सेम आंसर। पृथ्वी देवी को क्या कृपा मिला है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोले। हरे कृष्णा। पृथ्वी देवी को, हाँ, पृथ्वी देवी को पितृवर्ग और दास वर्ग और सखिया जो है, वो सबसे ज्यादा पृथ्वी देवी उनसे भी भाग्यवान है, क्योंकि वो तो कभी कभी भगवान से विलग भी होते हैं, लेकिन पृथ्वी देवी भगवान कहीं पे भी रहे हुए पृथ्वी पे ही रहेंगे और पृथ्वी देवी कभी उनसे विलग नहीं होती है। ये कृपा मिला हुआ है उनको। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां बोलते हैं ठीक है हम लोग दुर्भाग्य है, लेकिन हमको हम कृतार्थ हो जाएंगे, कैसे? इसका उत्तर कौन देगा? पुष्पा गुप्ता माता जी आप। हाँ, वो गोपिया कहती है कि तपस्या, गोपिया पृथ्वी देवी से कहती है कि तुम लोग क्या तपस्या की है, वो हमें भी बता दो, वो तपस्या भी करे जिससे हम लोग को कृष्ण का भी विरह नहीं हो हमसे। अगर वो तपस्या हम नहीं भी कर सके तो आप जो तपस्या की है उसका श्रवण करके ही हम शायद कृतार्थ हो जाएं, कृतार्थ हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन देव का 3 नाम बताइएगा। वामन देव का 3 नाम बताइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बावन देव का हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। उनके 3 नाम है, एक वामन देव है, एक उपेंद्र है जो इंद्र के छोटे भाई हैं, और एक त्रिविक्रम है जो 3 नाम जिन्होंने रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का तपस्या का वर्णना थोड़ा कीजिएगा। पृथ्वी का तपस्या का वर्णना कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वामन देव जब एक पद उठा के जब एक पाद जब ऊपर उठाए थे तो दूसरा पांव पृथ्वी पर पड़ा था, उससे बहुत ज्यादा भार, भगवान का पूरा भार जो है पृथ्वी के ऊपर पड़ा, तो पृथ्वी देवी ने वो वामन देव का एक पांव का भार सहन किया। और दूसरा जब माता जी नेक्स्ट दूसरा कोई बोलेगा, कविता केडिया माता जी बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दूसरा कारण है कि बराह देव ने पृथ्वी को जो उठाते समय जो कष्ट, मतलब जोर से पकड़ा था, जो कष्ट हुआ था वो भार उन्होंने सहन किया था। हरि बोल, हरि बोल। ओके। पृथ्वी का साधना हम लोग अभी सुना है, पृथ्वी का साधना, इससे उनको क्या लाभ मिला है? पृथ्वी का ये साधना से पृथ्वी को क्या लाभ मिला है? कौन बोले? रत्ना अग्रवाल माता जी। नहीं है तो देखने दे। हाँ, अनम्यूट करिए करके बोलो। हरे कृष्णा माता जी, उनको ये फायदा हुआ कि पूरी पुलकित होकर, उनके नरम घास इतने सुंदर, इनके पृथ्वी का पूरा रोमांच हो गया उनको, जैसे पूरा प्रसन्न दिख रही है पृथ्वी माता। और भी क्या है, ये बहुत ही मतलब भगवान के चरण कमल पाकर वो बहुत ही प्रसन्न है।
और हमेशा वो क्योंकि भगवान कभी भी उनका चरण स्पर्श कर मतलब पृथ्वी को तो हमेशा ही मिला, जैसे कि अभी हमने सुना कि पितृ सखा और दास से भी ज्यादा सौभाग्यशाली पृथ्वी माता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ प्रभु जी इतना ही क्वेश्चंस। हरि बोल। हरे कृष्णा, कंप्लीट हो गया, सब कवर हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक बात और बोलना है प्रभु। प्रभु जी आज वराहदेव का अपीयरेंस डे है और वराहदेव के बारे में हमको आज सुनने का हमको आज हाँ ओ कृष्णा, देखिए ये तो कोइंसिडेंस ही हो गया एकदम कि आज ही उनका अपीयरेंस, आज वराहदेव की कथा इसमें आ गई। सोचा भी नहीं था। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि आज 12 बजे तक आज का फास्टिंग है, कल है द्वादशी 12 वराहदेव का। हरे बोल, अच्छा है वराहदेव की कथा सुनने मिले। हरे कृष्णा। हरे बोल।